نماز کے دوران اس لیے فرمایا نماز کے دوران سلام پھیرتے ہوئے ہماری نظر اس کندھے کی نوک پہ ہو، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، ہماری کندھے کی نوک پہ نظر ہو اور ہماری نیت ہو، کیونکہ ہمارے سامنے یہ تین عالم ہے، عالم ارواح ہے، فرشتوں کا عالم ہے، جنات کا عالم ہے۔ الواح سے مراد یہ انسان موجود ہیں یا غائبین ہیں یا منتظرین ہیں، جو روحیں موجود ہیں اور آنے والی ہیں، وہ منتظر روحیں ہیں۔ نماز کے ایک ایک عمل میں کائنات کے راز چھپے ہوئے ہیں، اور نماز کے ایک ایک عمل میں کائنات کی انوکھی دنیا چھپی ہوئی ہے، اللہ جس پہ چاہے کھول دے۔ اور اگر پورا سلام کریں تو السلام علیکم ورحمت اللہ سلام کرتے ہیں، یہ سلام کیا ہے؟ اور نماز کے اختتام پہ اس سلام کا فلسفہ، اس کی وجہ، اس کی بنیاد کیوں ہے؟ فرمایا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اور دائیں طرف پہلے سلام پھیرتا ہے اور السلام علیکم ورحمت اللہ کہتا ہے، تو اس طرف کی جنات، اس طرف کے انسان اور اس طرف کے فرشتے، ان تین مخلوقات کو سلام کی نیت کرے، جنات، انسان اور فرشتے۔ اور بائیں طرف سلام کرے تو اس طرف تین مخلوقات ہیں، جنات، انسان اور فرشتے، ان کی نیت کرے اور انہیں سلام بھیجے، یعنی ان کی نیت کرے۔ اگر تنہائی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، جماعت میں تو انسان نظر آتے ہیں دائیں بائیں، تو بھی ان تینوں کی نیت کرے، ان تینوں کی نیت کرے۔ کیوں؟ وہاں انسان بظاہر نظر نہیں آ رہا، لیکن ارواح تو ہیں، نیک روحیں تو ہیں، اور نیک روحیں اور نیک ارواح سلام کرنا ایک اور چیز۔ ایک جہان یہ ہے جو دیکھا ہوا ہے، میری آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، ایک وہ جہان ہے جو اندیکھا جہان ہے، جس کی مخلوقات ہمیں سمجھ نہیں آتی، جو عالم ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، جس عالم کو ہم جانتے نہیں، جس عالم کے بارے میں سنا نہیں، دیکھا نہیں، سوچا نہیں، پڑھا نہیں، یا کبھی کبھی سن لیا کہ کچھ اور عالم بھی ہیں، کچھ اور جہان بھی ہیں، کوئی اور کائنات بھی ہے، ہمیں ان کو بھی سلام بھیجنا ہے، ہمیں ان پہ بھی سلام کرنا ہے۔ کوئی اور عالم بھی ہے اور کچھ اور عالم اور ایک جہان اور بھی ہے۔ کل لگے میں حضرت کا جا کے مسجد میں مصلی رکھ کے آؤں، تو بیوی نے کہا کہ مچھلی میں تیار کر رہی ہوں، کہا بس حضرت کا مصلی رکھ کے آتا ہوں نماز کے لیے، تاکہ حضرت کی جگہ رہ جائے۔ راستے میں مصلی رکھ کے واپس آئے تو گنگا میں کہا کہ جمعے کا دن ہے، نہا لو، کپڑے اتار کے رکھے اور نہائے، نہانے کے لیے ڈبکی لگائی، اور ڈبکی لگائی تو کسی اور جگہ جا کے کنارے پہ نکلے، وہاں جس میں محسوس کیا کہ جس پہ کپڑے تو نہیں ہے، کسی نے کپڑے دے دیے، پھر اس میں نکل گئے، وہ مصر تھا، پیچھے سارا بھول گئے کہ میں کہاں سے آیا تھا، پھر وہاں زندگی گزرنے لگی، وہاں شادی بھی کر لی، وہاں بچے بھی ہو گئے، اور سالہ سال زندگی ایسے گزر گئے۔ ایک دفعہ خیال آیا تو میں تو حضرت کا مصلی بچھا کے اور حضرت کے مصلی کے ساتھ نماز کے لیے انہیں لے جانا تھا، اور میں آیا دریا کے کنارے تھا، گیا گنگا میں تھا، نکلا نیل سے تھا، دریائے نیل مصر میں، اور دریائے نیل میں پھر گئے تو گنگا سے جا کے نکلے، کپڑے پہنے، اتارے، وہ پہنے اور گھر بھاگے، تو بیوی نے کہا بس مچھلی تیار ہے، آپ کے کھائیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ زندگی کے اتنے سال تو میں نے وہاں گزارے، ہو کر کیا ہو گیا، ابھی تو گئے تھے۔ وہ کہے میں ایسے گیا کہ دماغی طور پہ لگتا ہے کوئی تھوڑا سا خلل آ گیا ہے۔ ہمارے ایک صاحب تھے، جس کا دماغ خراب ہو جاتا تھا، اس کو کہتے تھے دماغی کوفت ہے، ان کا مخصوص لفظ تھا کہ اس کو دماغی کوفت ہے، تو اسے سمجھا شاید کوئی دماغی کوفت ہو گئی ہے۔ وہ کہے میں مصر میں تھا، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، ایک دفعہ میں نے ان سے تذکرہ کیا تھا کہ میں تو فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، اس طرح پتہ نہیں قدرت مجھے یہاں کیسے لائی ہے، وہاں بھی میری بیوی بچے ہیں اور یہاں بھی ہے۔ کہا میں نے ایک دفعہ تذکرہ کیا تھا تھوڑا سا، بس پھر بھول بھلائیاں ہو گئی۔ پھر ایک دفعہ یاد آیا کہ میں حضرت کا مصلی بچھا کے مسجد میں گیا تھا، میں تو ان کو جمعے کے لیے لے جانا تھا اپنے مرشد کو۔
वो कहे अभी जा रहे हैं आप, और आप अभी तो गए हैं, और भागे तो और मुर्शिद को जाके मस्जिद में ले आए, नमाज पढ़ाई, पर दिमाग घूम रहा था कि मैं कहां पहुंचा था और क्या था, वो ख्वाब था, वो ख्याल था, वो हकीकत थी, वो क्या था। कुछ माह के बाद बीवी बच्चे लेके आ गई ढूंढती ढूंढती पीछे से कि जी आप हमें छोड़ के गए थे, एकदम गायब हो गए, ये क्या जिंदगी है, ये क्या वफा है, ये क्या है। कुछ जहान और भी है जो मेरी आपकी समझ में नहीं है, कुछ जहान और भी हैं जो मेरी आपके समझ में नहीं है। बंद टूटने वाला था, सख्त सैलाब था कि बंद टूट जाएगा, और अगर बंद टूटा तो सारा सारा शहर खत्म। दरवेश की खिदमत में हाजिर हुए, हजरत को दुआ फरमाए। क्या हुआ? फरमाए एक जवान दो, उसको कश्ती में बिठा दो, मैं उसको शाह जिन्नात के पास भेजूंगा और उनसे अर्ज करूंगा दुआ फरमाए ये बंद ना टूटे। उन्होंने एक जवान दिया, उसको कश्ती में बिठाया, थोड़ी देर में देखा तो गायब, कश्ती भी गायब, वो भी गायब। कुछ दिनों के बाद वो जवान घर में मिला, लेकिन दिमाग उड़ा हुआ, लहजा उड़ा हुआ, सोचे पथराई हुई, आंखें पथराई हुई, और वह ऐसे परेशान देखता था। कुछ दिनों के बाद तो आलम होश में आया। पूछा क्या हुआ? कहा आपने मुझे कश्ती में छोड़ा तो एकदम मैंने देखा कि पानी के नीचे, और पानी के नीचे देखा तो एक शहर है, इसी तरह शहर आबाद है, पूरी दुनिया है। मुझे ले गए कुछ लोग लेकर, तख्त लगा हुआ है और वहां बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हैं, और कहा हजरत ये फलां दरवेश का भेजा हुआ कासिद है, और वो कहते हैं कि आप दुआ फरमाएं बंद ना टूटे, और अगर बंद टूट गया तो सारा शहर खत्म हो जाएगा। कहा हमने दुआ कर दी है, बंद नहीं टूटेगा, पर ये बंदा आप हमें दे दे। कहा बस मैं फिर उनके यहां मेहमान रहा कुछ दिन के लिए, बड़े खाने, बहुत पीना, बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार। एक दुनिया थी, एक शहर था, एक जहान था, और एक कायनात थी। और फिर बस उसके बाद मैंने कहा मुझे उदासी हो रही, मुझे घर पहुंचाएं, तो उन्होंने मुझे घर पहुंचा दिया और मैं घर आ गया। आलम मुशाहिदे के बाद ज्यादा अरसा वो बंदा ना जी सका, वो बंदा ज्यादा अरसा ना जी सका। किताबों में लिखा है जिन्नात पानी के नीचे भी रहते हैं, जमीन के नीचे भी रहते हैं, फजाओं में भी रहते हैं, हवाओं में भी रहते हैं, बिलों में भी रहते हैं। एक जहान और भी है जो मेरी आपकी नजरों से, मेरी आपके गुमान से, मेरे आपके ख्याल से नहीं है। मैं गया पागल खाने, ये अभी सामने हमारी इस तरफ पागल खाना है, जेल रोड पे, 10 मिनट के बाद पागल खाना आ जाता है यहां से। मैं पागल खाने गया, कई साल पुरानी बात है। वहां के कुछ मोहब्बत करने वाले तस्बीह खाने के थे, उन्होंने मुझे फिर आया पागल खाना, बहुत बड़ा पागल खाना है। यहां का पागल खाने में भी गया, फिर एक मानसिरा से आगे है, जबूड़ी से आगे है डाडर, वहां के पागल खाने में भी 2 दफा गया। तो यहां के लाहौर के पागल खाने में गया तो मैंने कहा कोई अनोखी बात, कोई चीज। उसने कहा एक पागल है, इस तरह की बातें करता है कि मैं 300 साल पहले यहां यूं था, यहां यूं था, यहां यूं था, और इस तरह जहान था, इस तरह जहान था। तो मैंने पूछा आपका क्या ख्याल है कि वो पागल आदमी पागल बातें करता है? मैं कहा अगर वो हकीकत हो तो। वो कहते मैं रावी में नहाने गया था। रावी उस वक्त होता था, रावी होता था, मीलों में फैला हुआ उसका पेटा था, रावी था। मैं रावी में नहाने गया था, बस उसके बाद फिर किसी में शहर में चला गया, वहां रहा, जिंदगी गुजरती गई, और फिर वहां से मैं बूढ़ा हो गया। फिर एकदम ख्याल आया, यहां आया तो निजाम बदला हुआ, लाहौर का नक्शा बदला हुआ, लाहौर का अंदाज बदला हुआ। पता चला कि 300 साल पहले मैं गया था। अब वो ऐसी बातें करे, उन्होंने पकड़ के, वारिस था कोई नहीं, अम्मा अब्बा बहन भाई बीवी सब मिटा गए, कायनात कहानी खत्म हो गई, उन्होंने पकड़ के पागल खाने दे दिया। और वो पागल जैसी बातें करता है, जबकि वो पागल नहीं है। वो कहते पागल है, ये कैसी बातें करते हैं? एक आलम ये है, एक आलम वो है, एक आलम वो है जिसकी रफ्तार बड़ी तेज है। मैं आज पूरी दुनिया की कालें लेता हूं, दुनिया के बाज आखिरी किनारे में मेरी बात हो रही होती है। ये नहीं होता
कि मैं बात करता हूं तो वहां तक बात पहुंचते पहुंचते वक्त लगता है, फिर वो बात करते हैं मुझ तक पहुंचते पहुंचते वक्त लगता है। नहीं, मेरी सांसें उनकी सांसें, मेरी बातें उनकी बातें ऐसे हो रही जैसे मेरे आप आमने सामने बैठे हैं। ये नूर का जहान है, नूरी साल है, नूरी रफ्तार है। 1,86,000 मील फी सेकंड ये अंदाजे हैं, जबकि कायनात इससे आगे है और इससे कहीं आगे है। इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की उन बातों पे लोगों ने उस वक्त फतवे लगाए थे। शेख मोहिउद्दीन आज से तकरीबन 700 साल पहले कहने लगे, मैं काबा का तवाफ कर रहा था तो मैंने देखा आदम है। मैंने कहा आप आदम हैं? कहे कौन से आदम? मैंने कहा आदम अलैहिस्सलाम। कहे किस जहान के आदम? या कई आदम हैं, कई जहान है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह आलम नहीं, आलमीन का रब है। ये जो सलाम है, ये जो सलाम है। एक साहब ने मुझे अपना वाकया सुनाया, एक साहब ने अजीब वाकया सुनाया। मेरे पास हर तरह के लोग आते हैं, जिंदगी सारी गुजरी है, कहानियां बनाने वाले भी आते हैं, लेकिन हकीकत भी आती है। हकीकत बहुत थोड़ी होती है। कहानी की बात सुना। एक साहब मुझसे कहने लगे कि जी मैं एक बिशारत लाया हूं आपके लिए। ऐसे मैंने सूरत यासीन पढ़ी, ऐसे ही हुजूर आए, उन्होंने कहा कि उसको जाके मेरा सलाम कहें और आपके लिए बहुत बड़ी बिशारत। मैं कहा जी इस काबिल हो जाऊं। वो फिर इसरार करे कि वाह वाह कहे। मैं कहा बस दुआ करें। चला गया। दूसरे दिन नहीं, कई दिनों के बाद फिर आया। ऐसे ऐसे मैंने अमाल किए, ख्वाब आया आपके लिए। मैं कहा ठीक है। कुछ दिनों के बाद अचानक आए कि फलां बंदा जो है, मेरी इज्जत का मसला है, इतने पैसे दे दे, मैं आपको 2 दिन के बाद लौटा दूंगा। और बस मैंने कहा जी मेरे पास तो नहीं है। मैं वही हूं जिसने ख्वाब सुनाया था। मैं बिल्कुल ठीक है, जब ख्वाब मुझे आ जाएगा तो फिर हम आपस में लेन देन कर लेंगे। अभी तो आपको आया ना, मुझे जब आएगा तो मामला लेन देन कर लेंगे। एक दफा उसने बंदा भेजा, भागता भागता बंदा, हाँफता कांपता आया, हाँफता। ऐसे ऐसे वो कह रहे हैं जी ऐसी मसला है, पैसे दे दे। मैं कहा नहीं। उसके बाद फिर वो आके बकायदा मुझे बेइज्जत करके गया कि आपने मेरे ख्वाबों की लाज नहीं रखी, सूरत यासीन की लाज नहीं रखी, तुम तो काफिर मुशरिक मुनाफिक आदमी है तुम। और वो ये है क्योंकि मैंने पैसे नहीं दिए, वरना मैं मोमिन था। अच्छा, मैं बात जो कर रहा था। एक साहब कहने लगे कि मैं अल्लाह से मांगता रहा कि अल्लाह मुझे आलम, मेरे ऊपर आलम खोल दे, अपना निजाम खोल दे कि ये आलम है क्या, और इस आलम में तूने जो आलम बनाए हैं क्या है। कहने लगे कि दुआएं मांगता रहा, उसके लिए अमाल भी करता रहा, उसके लिए अस्कार भी करता रहा, उसके लिए चिल्ले भी करता रहा, बहुत कुछ करता रहा कि अल्लाह आलम कश्फ मुझ पे खोल दे, अपनी कायनात के राज मुझ पे खोल दे। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। जिस पे चाहे तो खोल दे। ला तुद्रिकुल अब्सार व हुवा युद्रिकुल अब्सार व हुवल लतीफुल खबीर। तू चाहे जिस पे अपनी दुनिया, अपनी कायनात खोल दे। वजअलना मिन बैन ऐदिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम। ग़िशा, तू चाहे जिससे पर्दे हटा दे। फकशफना अनका ग़िताअका फबसरुकल यौम हदीद। अल्लाह तू जिससे चाहे पर्दे हटा दे। कहने लगा मैं क्या करता रहा। एक दफा कहा मैं तन्हाई में नफिल पढ़ रहा था, मैंने जो ऐसे सलाम फेरा ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, मैंने देखा कायनात है इस तरफ पूरी की पूरी। कोई घर सोने के, कोई घर चांदी के, कोई हीरे, कोई जवाहरात के, कोई ईंटों के, कोई कोयले के, कोई चीजों के बने हुए हैं। वहां कायनात रह रही है और दुनिया रह रही है। उसके बाद एक नक्शा हटा, फिर मैंने समंदर देखा, समंदर के नीचे कायनात है, फिर उसके नीचे और दुनिया है, फिर उसके नीचे और दुनिया है। कहा ऐसी दुनिया आलम में गुम हो गया। और वो एक सलाम जो है, ऐसे दिमाग, वहीं आंखें। और कुछ देर के बाद ख्याल आया कि अभी मैंने तो दूसरा सलाम भी नहीं कहा। दूसरी तरफ बाएं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो इस तरफ एक और कायनात का जहान खुला के पहाड़, पहाड़ों के नीचे दुनिया, दरख्त, दरख्तों के अंदर दुनिया, पत्ते पत्ते पे कायनात, पत्ते पत्ते पे निजाम, जर्रे जर्रे में अनोखी दुनिया, अनोखी कायनात। कहा दिमाग ऐसे हुआ 8 दिन तक ना सो सका, ना खा सका, ना पी सका, बस जबरदस्ती खिलाते पिलाते थे। आलम हैरत या दलील अल मुतहय्यरीन, मुतहय्यर हो गया, हैरत, आंखें फटी की फटी, निजाम फटा का फटा, आंखें ऐसी, कायनात का कोई खबर नहीं। तो 8 दिन के बाद आवाज आई, हमसे और आलम मांगेगा।
सिर्फ हमने अपना थोड़ा सा जलवा दिखाया था, मूसा जैसा नबी भी बेहोश हो गया था। तूर पे मूसा अलैहिस्सलाम जैसा नबी, 28 पारों में तो उनका नाम आया है, 2 पारों में कुल 30 पारे हैं, उनके हवाले आए हैं। मूसा वो नबी हैं, मूसा वो नबी हैं। मैं गया वहां उस जगह जहां तूरे सीना, मूसा हमारी तजल्लियां बर्दाश्त न कर सका, तो हमसे आलम कश मांगता है, तो सारे निजाम का आलम मांगता है। बस तुझे हम इतना बता दें, जब तू सलाम फेरता है नमाज में, तो नमाज के दाएं तरफ कायनात सारी की सारी तेरा सलाम जाता है और तेरे लिए दुआओं में लग जाते हैं। और जब बाएं तरफ सलाम फेरता है, इस तरफ सारी कायनात खरबों खरबों साल पुरानी खरबों लोग हैं, उस तरफ जब निजाम जाता है तो दुआओं में लग जाते हैं। तेरे इस सलाम से जो तुझ पे सलामती लौट के आती है, तेरे इस सलाम से जो तुझ पे सलामती लौट के आती है, तो सारी कायनात की इबादतें कर ले, वो नहीं मिलेगा जो इस सलाम पे मिलेगा, इस सलाम पे मिलेगा। एक दुर्वेश थे, सूरत फातिहा में बहुत देर लगा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते चुप खामोश, फिर पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, फिर चुप। इसी तरह सूरत फातिहा में देर। पूछा हजरत देर क्यों लगी? फरमाया हर कलाम के बाद जब तक मुझे जवाब नहीं मिलता तो मैं आगे नहीं पढ़ता। और कहा कि आज जवाब देर से मिला, लगता है मुक्तदियों में कोई कबायर में मुब्तला है, मुक्तदियों में कोई ऐसा है जो बहुत बड़े गुनाह कबीरा में मुब्तला है, इसलिए मुझे जवाब देर से मिला, वरना मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूं जवाब मिलता है, आगे पढ़ता हूं जवाब मिलता है। मेरी कोई नमाज ऐसी नहीं जिसमें मुझे जवाब ना मिला हो। कहा मैं रोज़ा अथर पे हाजिर हुआ और मैंने सलाम पेश किया, देर हो गई, फिर सलाम पेश किया, देर हो गई, फिर सलाम पेश किया। मेरे साथ कुछ लोग थे, मैंने कहा आप चले, आपका सलाम हो गया, मैं आता हूं। उनके जाते ही जवाब मिला, वालेकुम अस्सलाम या वलदी, मेरे बेटे तेरा सलाम कबूल है। कहा उनमें कोई ऐसा बंदा था जो ऐसे कबायर में मुब्तला था, उसकी वजह से मेरा सलाम रुका हुआ था। कोई जहान और भी है, कोई दुनिया और भी है, कोई कायनात का निजाम और भी है। एक मेरी आंखों के सामने मुशाहिदे का जहान है, एक मेरी आंखों के सामने इंसानों का जहान है या जिन्नात और फरिश्तों की सुनी सच्ची दास्तानें हैं। एक वो निजाम है जो मुशाहिदे में भी नहीं, मुताले में भी नहीं, कहीं नहीं है, पर एक निजाम है, एक आलम है, एक दुनिया है जिसको मैं नहीं जानता, वो एक दुनिया है, और वो हकीकी दुनिया है, और वो सच्ची दुनिया है, और वो हकायक की दुनिया है। नमाज की जो इबादत है और नमाज में इबादत का जो राज और कमाल है, इसकी हकीकतों तक में आप नहीं पहुंच पा सकते। इसलिए फरमाया कलमे के बाद सबसे पहले जो चीज जिंदगी में वो नमाज है, और जब तक गर्रा नहीं, और जब तक मौत की सकरात नहीं, और जब तक आलम होश है, उस वक्त तक नमाज है। ये सलाम, इसमें बड़ी ताकत है। एक चौधरी था, तो वो एक पीर साहब था, फकीर दुर्वेश आदमी थे, मस्जिद के खादिम भी थे, उनका मुखालिफ था। सारा जहान जाके चौधरी को सलाम करता था, ये सलाम करने नहीं जाता था, गुजरते थे तो सलाम कर देता था। कहता मेरे डेरे पे आके सलाम किया कर रोज मुझे। उसने कहा ये 5 वक्त नमाज मस्जिद की खिदमत होती है, आप मुझे रुखसत दे दे, मैं ना आया करूं। उसने कहा तो मेरी रियाया है, तो ये जरूरी है तो सलाम कर। ये नहीं जा सकता था, चौधरी नाराज था, इलाके का बड़ा, गांव का बड़ा। एक बच्ची थी, उस पे जिन्नात आ गए बहुत ज्यादा, जगह जगह लेके फिरे। जिन्नात ऐसे सख्त थे, जो बंदा भी जिन्नात को निकालने के लिए आता, जिन पहले उसकी ठुकाई करता था और मार के जख्मी कर देता था। चौधरी कहने लगा ये जो मस्जिद का मौलवी साहब है ना, ये बड़ा ताकतवर है, जिन निकालता है, ये मानेगा नहीं, आजिज़ी बहुत है इसमें, इनकसारी बहुत है, इसके पास ले जाओ और तुम बाहर निकल जाना, ठीक, ये जिन निकाल देगा। उसने कहा भाई इसकी मैं तबीयत ठीक कराऊं। अब उनके पास ले गए, उन्होंने कहा जी 4-5 साल की बच्ची है, इसमें जिन्नात हैं, और जब ये जिन्नात आते हैं तो ये बच्ची मुकाबला जब करती है, कई बंदे जख्मी कर देती है, ताकत इतनी होती है। वो तो जिन्नात थे अंदर,
تو آپ اس کا علاج. اس نے کہا میں تو یہ کام نہیں کرتا, میں تو نماز پڑھتا ہوں, سادہ سی تسبیح پڑھتا ہوں, چٹائیاں سیدھی کرتا ہوں, پانی بھرتا ہوں. انہوں نے کہا نا, دیکھو نا بات آ گئی کہ انہوں نے کہا, چودھری نے کہا تھا انکار کرے گا, بات آ گئی نا. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کیا کیا, بچی کو اندر بند کر کے کنڈی لگا دی. کنڈی لگاتے ہی بچی کہنے لگی ہاں آ گئی جن. اس نے ہاتھ باندھے, سلام کرتا تھا. انہوں نے کہا میں فقیر ہوں, میں تیرا کیا مقابلہ کروں گا, تو جن ہے, اللہ نے تجھے طاقت دی ہے, میرے سلام اور عاجزی قبول کر لے. بار بار سلام کرے اور عاجزی کرے, تیری مہربانی. اور کہا اگر تو چلا جائے گا میری واہ واہ ہو جائے گی, اور مجھے پھر کوئی تبرک چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی, غریب ہوں, 4 دن میرے سنور جائیں گے. یہ زاریاں, سلام, منتیں, یہ کینا. تو جن کہنے لگا میرے پاس جتنے بھی آئے تھے مقابلے والے آئے تھے, عاجزی والا پہلا آیا ہے. جتنے بھی آئے تھے نا وہ سارے مقابلے والے آئے تھے. وہ مقابلے جب آتے تھے تو مجھ سے بڑے طاقتور تھے نہیں, میں انہی کو پچھاڑ دیتا تھا. تو عاجزی والا آیا ہے, سلام, عاجزیاں, ہاتھ باندھتا ہے, پاؤں پڑتا ہے, ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں اور آج کے بعد نہیں آؤں گا. وہ جن چلا گیا, بچی ٹھیک ٹھاک ہو گئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہو گئی. اس کے بعد اس کی جو واہ واہ ہوئی, انہوں نے کہا کمال کر دیا, چودھری پریشان کے ہوا کیا ہے. کام تو سارا الٹا ہو گیا. میں نے تو اس کی طبیعت ٹھیک کرانی تھی, جن نے اس کو زخمی کرنا تو ہڈی ادھر ادھر کی توڑ دیتا. یہ کیا ہو گیا. تو اس کے پاس آیا. اچھا اسے بھی سمجھ آ گئی یہ ساری چودھری کی کہانی ہے, پتہ چل گیا اسی نے کہا تھا. انہوں نے کہا چودھری صاحب آپ کے پاس چودراہٹ ہے, آپ کے پاس بڑا پن ہے, میرے پاس چھوٹا پن ہے. اللہ چھوٹے پنے کو قبول کرتا ہے. میں نے ان کے سامنے منت زاریاں کی, سلام کیے, ہاتھ باندھے. اس نے میری منت زاری کو قبول کر لیا اور منت زاری کو قبول کر کے وہ چلا گیا. بس میرا اللہ نے میرا بھرم رکھ لیا, میری لاج رکھ لے. کچھ دنیا اور ہے, کچھ نظام اور ہے. ایک میری آنکھوں کے سامنے ایک دنیا ہے, آپ کی میری آنکھوں کے سامنے. اسی بات پہ ایک حدیث سناتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حضور نے, میرے آقا نے مجھے علم کے 2 برتن عطا کیے ہیں. ایک وہ جو میں نے بیان کر دیا, سب سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ سے ثابت ہے. ایک وہ جو میں نے بیان کر دیا, ایک وہ ہے اگر میں بیان کر دوں تو 2 لفظ ہیں, یا میری زبان نکال دیں گدی سے, یا تلوار لے کے مجھ پہ ٹوٹ پڑے. ایسے کائنات کے راز ہیں میرے پاس, پر میں زبان پہ نہیں لا سکتا. ایک چھوٹا سا راز زبان پہ آیا تھا. اللہ پاک نے فرمایا میری محبت کا راز لوگوں کو بتا دیا, اب بول یا محبت سے نکالتا ہوں یا پھر دنیا میں اس کی سزا دلاؤں گا. مولا دنیا میں سزا دلا دے, پر اپنی محبت اور اپنے عشق اور مستی سے مجھے دور نہ کرنا. اور دنیا میں وہ سزا ملی کہ لوگ منصور حلاج کی سزا کو جانتے ہیں. پتھر مارے گئے, آگ لگائی گئی, جلایا گیا, راکھ بنائی گئی, پھانسی دی گئی, ٹکڑے کیا گیا, کیا کیا گیا, دنیا کی ساری سزائیں ملی ہیں. کہا مجھے اپنی محبت سے نہیں, تو نے میرے ایک راز کو ظاہر کیا تھا, وہ تیرا میرا درمیان تھا. دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جس کو کوئی راز ملے اور آپ کو اپنے پاس راز رکھے. روح راز کا نام ہے, روحانیت رازوں کا نام ہے. اٹھا دینا. روح کس کا نام ہے؟ راز کا نام ہے. روحانیت رازوں کا نام ہے, رازوں کا نام ہے. میری حضرت رحمت اللہ علیہ نے مجھے کتنے راز دیے ہیں, فرمایا اپنے تک رکھنا بس, اب یہ سینہ قبر میں چلا جائے گا. کتنی باتیں فرمائیں, کتنی چیزیں فرمائیں, بس حکم ختم. کچھ اور دنیا بھی ہے, کچھ اور جہان بھی ہے جو میری آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. میری وہ آنکھیں ہیں جو چہرے کی آنکھیں ہیں, اس لیے کہا اللہ سے دل کی آنکھیں مانگا کرو. اللہ دل کی آنکھیں عطا فرما. ایک چہرے کی آنکھیں تو سب کی ہیں, کچھ دل کی آنکھیں بھی مجھے عطا کر دے. مولا مجھے دل کی آنکھیں دے دے. جس کو دل کی آنکھیں ملتی ہیں اس کے سامنے کائنات کے جہان اور ہے, نظام اور ہے, دنیا اور ہے, عرش و فرش ہے پر اور ہے. اللہ پاک اپنی قدرت کے جلوے دکھاتا ہے, کائنات کے مظاہر اور مناظر دکھاتا ہے. اللہ دکھاتا ہے کہ میرے پاس ایک اور عالم بھی ہے. تیرا علم محدود, تیرا سینہ محدود, تیری سوچیں محدود, تیری فکریں محدود, تیرے جذبے محدود ہیں. ایک اور عالم بھی ہے, ایک اور جہان بھی ہے. ابھی تو راہ گزر میں ہے, ابھی تو راہ گزر میں ہے. دنیا تو کہیں اور بھی ہے. قید مقام سے گزر, مصر و حجاز سے گزر, پارس و شام سے گزر, تو راہ گزر میں, راستوں میں ہے. قبر کا نظام ہم تو سمجھتے ہیں گڑھا ہے, ہم تو اس کو صرف گڑھا سمجھتے ہیں. جس کے سامنے اس کی دنیا کھلی, جس کے سامنے دلوں کی دنیا کھلی. کہا میں جا رہا تھا کشمیری بازار لاہور میں, وہاں درویش نے کیا کیا,
अपनी पगड़ी उठा के मेरे सर पे रखी तो मैंने देखा कि इंसान जितने भी हैं सारे के सारे, उसमें चंद इंसान हैं, बाकी किसी कुत्ते की शक्ल, कोई खिंजीर है, कोई क्या है, कोई क्या है, कोई क्या है। हाँ, एकदम परेशान हुआ। उन्होंने अपनी पगड़ी उठा के वापस अपने सर पे रखी तो मेरे सामने फिर वही इंसान ही इंसान थे, जबकि उस वक्त दुनिया मेरी और थी। शेख 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 इब्ने दकीक, शेख तकीउद्दीन इब्ने दकीक अल-ईद, शेख तकीउद्दीन इब्ने दकीक अल-ईद रहमतुल्लाह अलैह, सारी उम्र मुंह पे कपड़ा लपेट कर रखा, सारी उम्र मुंह पे कपड़ा लपेट कर रखा, किसी को चेहरा नहीं दिखाते थे। आखिरी ओर में जाते हो कहने लगे, लोगों एक राज बताता जाऊं, मैंने एक दफा तजर्बाती तौर पे एक हदीस को देखा, आजमा के देखूं, फरमाया जो इमाम से पहले उठेगा या पहले जाएगा, अल्लाह उसका क़यामत के दिन चेहरा गधे का बना देगा। इमाम की इत्तिबा करना इतना जरूरी है। और फरमाया नमाज का इमाम इमाम है, और जिंदगी का इमाम मुर्शिद होता है। नबी के बाद असल नबी है, फिर नबी के बाद मुर्शिद होता है, क्योंकि नबूवत का सिलसिला खत्म है नबूवत के सदके। तो कहा एक दफा मैंने आजमाया, मैंने कहा पहले करके देखूं तो मेरा चेहरा बदल गया है, और मैंने सारी उम्र अपना चेहरा छुपाए रखा है। अब मैं अपना, चूंकि मौत है और मौत में हर बंदा मेरा चेहरा देखेगा, और ये राज किसी को पता नहीं चलेगा कि ये चेहरा हुआ क्यों था, ये चेहरा हुआ क्यों था। लोगों, ये चेहरा इसलिए हुआ था कि मैंने इमाम की पहल की थी और आजमाने की खातिर की थी। अल्लाह ने कहा तू मेरा दोस्त था और तू भी आजमाता है मेरे हबीब की बातों को, ला मैं दुनिया में तुझे करके दिखा देता हूं। क्योंकि उसका निजाम अपनों के साथ और है, गैरों के साथ और है। ये लफ्ज कभी ज्यादा गौर से समझना। उसका निजाम अपनों के साथ और है। गली में बच्चे खेल रहे हो ना, 4-5, अपना बच्चा खेल रहा हो उसको पकड़ते हैं, ये खेलने की जगह है, ये खड़े होने की जगह है, बाकियों पे परवाही नहीं करते। उसका निजाम अपनों के साथ और है और गैरों के साथ और है। हाँ, बड़ी बारीक बात है, बड़ी गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। मैं तूने इमाम की इब्तदा नहीं की थी, तूने इमाम को छोड़ा था। हजरत पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, उनकी खानकाह में मैं गया हूं, वहां बगदाद में शेख के मजार के बाद फिर उनकी खानकाह, उनके तस्बीह खाने गया जहां उनकी खानकाह थी। तो उनकी खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ तो कहने लगा, हजरत मैं ख्वाब में देख रहा हूं कि मेरी शक्ल कुत्ते की तरह और मैं भौंकता हूं बकायदा, और लोग मुझे पकड़ने की कोशिश करते हैं, बांधने की, और मैं भागता हूं गलियों में, ख्वाब मुसलसल देख रहा हूं। हजरत ने पूछा किसी से बैत है तुम? हजरत मैं आपसे बैत हूं। तो फरमाया लगता यह है तो मुर्शिद की सही इक्तदा नहीं कर रहा, मुर्शिद को मुर्शिद नहीं माना, और मुर्शिद की नाफरमानी कर रहा है। खतरा है तुझे दुनिया में तेरी शक्ल कुत्ते की तरह ना हो जाए। और फिर यही वाकया सुनाया उनको कि हदीस में आता है, मफहूम है, जो इमाम की इक्तदा नहीं करे, उससे पहल या बाद में करे, उससे पहल करे, मैं उसकी शक्ल कयामत के दिन मौत के बाद गधे की तरह हो जाएगी और जानवरों की तरह बदल जाएगी। मफहूम है, मैं लगता यह है तो अपने मुर्शिद को सही मुर्शिद मान के नहीं चल रहा। कुछ दुनिया और भी है, कुछ निजाम और भी है जो जाहिर में समझ नहीं आता। हजरत पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी कभी रिश्तेदार को बैत नहीं करते थे, महल्लेदार को बैत नहीं करते थे, शहरदार को बैत नहीं करते थे, और हम 10 क्लास फेलो बैत नहीं करते थे। एक दफा हजरत का जब विसाल हुआ, बगदाद में जनाजा था, एक बंदा सबसे ज्यादा रो रहा था और धाड़े मार रहा था। लोगों ने कहा कि हजरत की महफिल में आज तक इसको देखा तो नहीं है, कौन है ये बंदा? तो उससे पूछा, कहा मैं हजरत का पड़ोसी हूं, सारी उम्र मैं लोगों के तबसरे हजरत के बारे में सुनता रहा, वसवसे सुनता रहा, बातें सुनता रहा, मैंने कोई हजरत को अहमियत नहीं दी। मैंने कहा ऐसी पीर है, दुनियादार पीर है। कहा रात को मैंने ख्वाब में देखा, कहने वाले ने कहा कि लोगों दुनिया यतीम हो गई, हमारा एक दोस्त इस दुनिया से चला गया। मैंने पूछा कौन? कहा तेरा पड़ोसी अब्दुल कादिर। कहा कि मैं इनके विसाल पे नहीं रो रहा, सब ने जाना है, अपनी महरूमी पे रो रहा हूं। मैं इनके विसाल पे नहीं रो रहा, सब ने जाना है, अपनी महरूमी पे रो रहा हूं। मैं करीब रह के शक और वसवसे की दुनिया में मुब्तला रह के, तबसरों और लोगों की सुनी सुनाई दुनिया में मुब्तला रह के इनसे दूर रहा। आज वो हस्ती चली गई और मैं महरूम रहा, जिस हस्ती के बारे में अर्शों से सदा आ रही है कि दुनिया यतीम हो गई है। कुछ जहान और भी है, कुछ दुनिया और भी है जो मेरी आपकी अकल और समझ में नहीं आ रहे।
समझ में नहीं आ रहा है। मैं मेरे हजरत के सामने बैठा बातें सुन रहा था, ऐसे बातें सुन रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज आई ना, दरवाजा खुलने में चूंचा होती है, दरवाजा खुलने, मैंने यूं देखा और खींच के मारा थप्पड़। और मैं बैठा, मेरे सामने पीछे मुड़ के देखता है। मालूम हुआ तेरे अंदर अदब और तलब नहीं है, तेरे अंदर अदब और तलब नहीं है। तेरा क्या ताल्लुक कोई आए ना जाए, गुम कर गुमा या करूँ रहे। उनके गुमान भी गुम हो जाते हैं, उनके ख्याल भी गुम हो जाते हैं, उनके जज्बे भी गुम हो जाते हैं। ये जो सलाम फेरते हैं, इस सलाम के साथ कई राज जुड़े हुए हैं, कई निजाम जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे लिए आफियत का निजाम है, हमारे लिए बरकत का निजाम है, हमारे लिए खैरों का निजाम है। और वो पलट के कायनात का निजाम वापस हमारी तरफ आता है। उनको सलाम करते हैं और वो सलाम का जवाब देते हैं। तो फिर ये वो यहां तक कहा, एक दरवेश थे, उनको देखते कहा जाओ तेरा काम बन गया, बस जाओ लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाओ। उसने कहा हजरत मैंने विलायत की मंजिलें, रूह की मंजिलें, लताइफ, जिक्र कल्बी, जिक्र जारी, लतीफा नफ्स, लतीफा कल्बी, सुल्तानुल अस्कार, जारी सिर, ये उन्हें बस तेरा काम बन गया, जाओ। फिर फरमाया तुझे यकीन नहीं आ रहा, ले सुन, तूने सलाम फेरा था, उस सलाम में खिजर थे, उस सफ में खिजर थे। तूने सलाम फेरा था, उस सफ में खिजर थे। खिजर ने तुझे कह दिया, तूने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, खिजर ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बस उनकी सलाम पे तुझे सलामतियां और जो रहमत मिली है, तू नबी तो नहीं बन सकता पर वली बन गया, जा तेरा काम हो गया है, सलाम में हो गया।